Hello, everybody. Welcome to Success Series. This is your educator Shrishti. Very interesting session is what we are doing today. This is with regard to your sample question paper. So, all of you all are very excited and well aware that CBSE has changed its pattern and उसकी वजह से आपको कुछ sample question papers दिए गए हैं. You have also been briefed about the marking scheme, etc. So these videos are in line and I hope you watch them all in a sequence so that you are well aware of the pattern as well as you see the model questions. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्शन सी. A and B have already been covered. You can have the description. You have the description box. वहाँ पे आपको links मिल जाएंगी. If you have not seen it yet, you can watch it there. So I am covering your entire SST portion. Section C में आपको 4 marks के questions आएंगे. Okay, and these are basically source based questions which has already been informed earlier. अब ये क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये हम लोग थ्रू द कोर्स ऑफ दिस लेसन देखेंगे. सो प्लीज बी कनेक्टेड टिल द एंड एंड टेक ऑल इनसाइट्स फ्रॉम हियर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइज. ओके, सो ऑन दैट नोट वी बिगिन. देखिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं. दिस आर बेसिकली पैसेज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि आपको एक सोर्स दिया जाता है, वहां से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड देन यू कैन गो अहेड विद इट. बिफोर टेकिंग यू फॉरवर्ड थ्रू द सोर्सेज, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि इनमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, कई सारे पैसेज क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनमें आप पैसेज नहीं भी पढ़ो तो यू विल बी एबल टू आंसर इट. सो इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, विच विल नॉट बी द केस, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन, बट इट्स ऑलवेज सेफर टू रीड द सोर्स. बट कभी कभी देर आर क्वेश्चंस दैट आर directly based on your world history or for that matter something else, so you can have a look at the questions and then see whether you have to, whether it is mandatory for you to go through the passage or you're able to understand and reach the right conclusion. चलिए, तो फर्स्ट पैसेज है. इट टॉक्स अबाउट द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815. यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. सो यहाँ पे कीवर्ड है कंजर्वेटिज्म. और एक और तरीका होता है सॉल्व करने का कि पहले आप क्वेश्चंस को देख लें. जस्ट सी व्हाट द फोकस एरिया ऑफ क्वेश्चंस इज सो दैट यू डोंट हैव टू कम बैक एंड रीड द पैसेज अगेन. सो डू अ बैक एंड सर्च. ठीक है, पहले पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चंस पे मत जाइए. क्वेश्चंस देख लीजिए किस तरीके के पूछे गए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं. देन कम टू द पैसेज एंड जस्ट वेरीफाई वेदर यू आर एबल टू गेट इट करेक्ट और नॉट. So having had a look at the questions, let's see what does it ask. It asks about conservative ideology. Then it asks you about Vienna of Congress in 1815. Then it also asks you what did the conservatives focus on at this Congress. And the last question from here is how did the Congress of Vienna ensure peace in Europe? So two major things that you're getting from here is about conservatism and about Vienna. Okay, Congress of Vienna in Europe. तो चलिए देखते हैं. कंजर्वेटिव्स, व्हाट डिड दे बिलीव? दे बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी, फैमिली, इनको प्रिजर्व करना है. इसका मतलब ये लोग ओल्डन फॉर्म्स ऑफ प्रिजर्वेशन में बिलीव कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हियर. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, इनको ये realize हुआ कि जो नेपोलियन ने changes लाए थे, the changes initiated by Napoleon, that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. तो इनको ये नहीं था कि हम लोग प्री रेवोल्यूशनरी डेज में चले जाएं, बट ये लोग इस कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन को उस तरीके से यूज करना चाह रहे थे जिससे ये लोग कंजर्वेटिव चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड दे सके. फॉर एग्जाम्पल, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. It could make state power more effective, more stronger. Modern army, efficient bureaucracy, dynamic economy, abolition of feudalism, serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि modernism could be used to preserve conservative ideologies. It could actually work in favor of conservatism. इन 1815 क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, जिन्होंने कलेक्टिवली डिफीट किया था किसको? नेपोलियन बोनापार्टे को. ये लोग क्या किए? ये लोग अब वियना में एक मीटिंग रखें टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, क्योंकि इन्होंने नेपोलियन को डिफीट कर लिया था. सो नाउ दे मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ फ्यूचर कोर्स फॉर यूरोप. It was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich.
The delegates drew up what? They drew up the Treaty of Vienna of 1815. So you guys will already be aware of Waterloo event 1814 when Napoleon was defeated etc. इसके बाद हमारे पास आ गई थी Treaty of Vienna. इनका क्या ऑब्जेक्ट था कि मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, इसे हमें देखना पड़ेगा. बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनको वापस पावर में लाया गया. फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज जो इन्होंने एनेक्स की थी नेपोलियन के अंडर. सो व्हेन नेपोलियन वाज रूलिंग ही हैड एनेक्स्ड अ लॉट ऑफ टेरिटरीज. विद द डिफीट ऑफ नेपोलियन ये सारी टेरिटरीज अब इनके कंट्रोल में नहीं रही. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. अब ये लोग फ्रेंच को वापस से इन फ्यूचर ऐसा कोई मौका नहीं देना चाह रहे थे जिससे ये लोग अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को वापस ला सके, जिससे ये लोग फिर से एनेक्सेशन वगैरह कर सके. So this is basically what your passage means. Now you have to answer the following multiple choice questions by choosing the most appropriate option. So it is a पैराग्राफ फ्रॉम योर वर्ल्ड हिस्ट्री पोर्शन. ये तो हमें समझ आ गया. अब क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अबाउट यूरोपियन कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी. सो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी अगर हम लोग नहीं भी स्टेटमेंट पढ़ें या फिर नहीं भी हम लोग ये पैसेज को पढ़ें तो वी विल अंडरस्टैंड कंजर्वेटिव थॉट्स मीन्स ओल्डन थॉट्स, ट्रेडिशनल थॉट्स. कहते हैं ना कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव थॉट है. People still killing girl children. This is a conservative idea. People still saying that girls should live indoors. Conservative idea. So preservation of beliefs introduced by Napoleon, ये तो definitely नहीं है क्योंकि ये लोग तो नेपोलियन के अगेंस्ट थे. नेपोलियन तो had been defeated. Christianity से कोई मतलब नहीं है. Preservation of socialist ideology in economic sphere, ये भी नहीं है. Preservation of traditionalist beliefs in state and society, definitely the correct answer. So undoubtedly you will mark D as the correct answer in this question. चलिए 23.2, identify the purpose to convene the Vienna of Congress in 1815 from the following options. तो आपको ये बताना है कि Vienna of Congress क्यों बनाया गया, क्यों ये मीटिंग होल्ड की गई थी in 1815. To declare competition of German unification? Definitely not. To restore conservative regime in Europe? हाँ लग सकता है. ठीक है, आगे देखते हैं. To declare war against France? No, not at all. To start the process of Italian unification? No, not again. So obviously conservative regime को देखने के लिए, यूरोप की फ्यूचर स्टेटस को देखने के लिए कि गोइंग फॉरवर्ड हाउ इज यूरोप गोइंग टू मूव अहेड, इस वजह से 1815 में ये मीटिंग बैठाई गई थी ऑफ ऑल द पावर्स हु हैड एक्चुअली डिफीटेड नेपोलियन. Who were those powers? You will be well aware of those powers. If not, please find out about the world history portion. These are important questions. Moving to 23.3, what did conservatives focus on at the Congress of Vienna? To re-establish peace and stability in Europe, to establish socialism in Europe. Socialism की कहीं बात नहीं की गई है. जो words clearly mentioned नहीं है उन पे जो extreme words हैं, सोशलिज्म कहीं आपने देखा, सो यू विल नॉट गो फॉर इट. टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी इन फ्रांस? नो, नॉट एट ऑल. ये लोग तो कुछ भी एक्सपेंशन पॉलिसीज नहीं देना चाहते थे फ्रांस को. टू सेटअप न्यू पार्लियामेंट इन ऑस्ट्रिया? कहीं भी ऐसा कुछ देखा? डेफिनेटली नॉट. सिर्फ ऑस्ट्रियन चांसलर की बात की गई है. सो डेफिनेटली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. हट के कोई भी जवाब नहीं देना है. लिमिट योरसेल्फ टू द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द पैसेज, यू विल नॉट गो रॉन्ग. हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वियना इंश्योर पीस इन यूरोप? तो चलिए देखते हैं. विद द रेस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी. ठीक है, लेट अस कंसिडर, लेट्स सी. ऑस्ट्रिया वॉज नॉट गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ये तो डेफिनेटली नहीं है. लेइंग आउट अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल द ग्रेट पावर्स इन यूरोप, दिस इज मोर द केस. क्योंकि बॉर्बन डायनेस्टी पूरे यूरोप के लिए नहीं थी, ये एक कंसिक्वेंस था ऑफ डिफीट ऑफ नेपोलियन, कि जो पहले ये बॉर्बन डायनेस्टी हटी थी, ये अब फिर से इसके पावर को रिस्टोर कर दिया गया. बट इन नो वे डिड इट हेल्प इंश्योर पीस इन यूरोप. द पीस इन यूरोप वॉज थ्रू दिस मीटिंग, जहाँ पे सारे ग्रेट पावर्स मिले थे जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था, एंड दे चार्टेड आउट अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. गिविंग पावर टू द जर्मन कॉन्फेडरेशन? नो, डेफिनेटली नो. सो सी इज योर करेक्ट आंसर.
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अनदर सोर्स. नाउ दे आर सेइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. So manufacturing industries के benefits के बारे में बताया जा रहा है. Then they talk about industrial development, जो कि एक precondition है. For what? For the eradication मतलब removal. किसी भी चीज़ को इराडिकेट करना मतलब हटाना, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, या फिर दूर करना. सो दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया. ये आपका सोर्स है. और भी इसमें कई तरीके की इंफॉर्मेशन दी गई है, बट आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विदाउट लुकिंग एट द सोर्स. सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चंस आर इन दिस पैसेज. फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो वील गो बैक टू द पैसेज. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन डैश एंड एग्रीकल्चर इन डैश. तो ये तो बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा है and in other subjects also you have read it. So this will definitely be secondary, okay, secondary sector. And agriculture, everybody knows, is related to natural resources, and so it is a part of your primary sector. So first is secondary and second is primary. So your option D will be the correct answer. इसके लिए पैसेज की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं थी. चलिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो फॉलोइंग जॉब्स है आपको इनको मैच करना है कि ये कौन से सेक्टर में बिलोंग करते हैं. तो बैंकिंग आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, ये टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी है, बिकॉज टर्शरी सेक्टर इज अबाउट व्हाट, अबाउट सर्विसेज. जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था, इवन इन क्लास 8 आई हैव टॉट इट. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी हाई एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. सो जो भी इंटेलेक्चुअल सर्विसेज है वो आपके क्वार्टरनरी सेक्टर में पहुंच जाती है. हाई एंड एंड इंटेलेक्चुअल, ओके, अ लॉट ऑफ एडवांस्ड सर्विसेज, दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर क्वार्टरनरी. बची गारमेंट प्रोडक्शन एंड माइनिंग. सो माइनिंग विल डेफिनेटली बी योर प्राइमरी एंड गारमेंट विल बी योर सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, देखो बी में आपका 4 है, सो बी में 4 इज ओनली ऑप्शन बी एंड दैट विल डेफिनेटली बी करेक्ट. सो ए विल बी 3, बी विल बी 4, सी विल बी 2 एंड डी विल बी 1. इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने को मिल जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर को हम लोग किस तरीके से मॉडर्नाइज कर सकते हैं? हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करके, केमिकल्स यूज़ करके, अच्छे अच्छे इरिगेशन मेथड्स यूज़ करके, कुछ सारे फार्म इक्विपमेंट्स, बहुत सारी मशीनरी, ये सारी चीज़ें यूज़ करके वी कैन मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. इसके लिए क्या पैसेज की ज़रूरी थी? नहीं थी. सो नाउ मूविंग टू द आंसर, मैन्युफैक्चरिंग फार्म इक्विपमेंट, येस डेफिनेटली, ये तो करेक्ट है. सप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हाँ ये भी मॉडर्नाइज करेगा. प्रोड्यूसिंग ट्यूबवेल पंप्स एंड स्प्रिंकलर्स, येस, इससे इरिगेशन आपका अच्छा होगा. लेकिन अनस्किल्ड लेबर फोर्स, ये आपके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कभी नहीं करेगा. इनफैक्ट अनस्किल्ड लेबर विल बी अ बर्डन ऑन एग्रीकल्चर. ओके, सो ये ऑपोजिट है टू व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. हेंस योर करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन 24.4. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, कंट्री को क्या डेवलप करना होगा? एग्रेरियन फैसिलिटीज, कल्टिवेबल लैंड्स, मीडिया फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. तो देखिए, अग्रेरियन फैसिलिटीज़ से फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को कुछ लेना देना नहीं है. कल्टिवेबल लैंड्स ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. मीडिया फैसिलिटीज़ आर जस्ट एन एड ऑन. Infrastructure, this is basically the building, the kind of land that you have, the other infrastructure that you have, that is going to attract foreign investment. So D will be the correct answer. Next we move to another passage. अब यहाँ पे भी पैसेज आप देख सकते हो, यू कैन रीड इट. इट इज़ अ पैसेज ऑन डेमोक्रेसी, बट वी विल डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस. सो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहे हैं. लेट्स सी. पीपल्स राइट टू चूज देयर ओन रूलर्स, इट इज़ नोन एज डेफिनेटली राइट टू वोट, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं इंडिया में.
above 18 years of age, everybody can vote, and by that you can elect your own rulers or leaders, elected representatives. This is a part of our democracy. Right to vote is the correct answer. Plebiscite, referendum, ये सब कुछ और चीजें हैं which is not relevant here. Which of the following options helps in promoting transparency in the governance? तो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट कैसे रहेगी? राइट टू एजुकेशन, येस, इफ यू आर एजुकेटेड यू विल बी वेल अवेयर ऑफ योर राइट्स, बट क्या वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकती है? नॉट नेसेसरी. राइट टू इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली करेक्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करके बताती हूँ. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, नथिंग डूइंग विथ ट्रांसपेरेंसी. राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, येस, ये आपको एक थोड़ा सा जरिया देती है कि आप पूछ सको, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछ सको, एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बट अगेन इट डज नॉट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी. ये जो आरटीआई एक्ट है 2005, ओके, इसका मेन मोटिव है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इससे क्या है, इससे आप गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिशियल से आंसर मांग सकते हो रिगार्डिंग देयर फंक्शनिंग, एंड दे आर बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन टू यू. सो इससे क्या होता है, इससे इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, एंड जैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है वैसे करप्शन कम होता है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है. सो करेक्ट आंसर डेफिनेटली इज ऑप्शन बी हियर. If you feel confused, you can have a look at the passage. Otherwise, these are general based questions. 25.3 dash makes the government legitimate. Legitimate मतलब legal, थोड़ा सा legalize कर देते हैं, validate कर देते हैं. और illegitimate क्या होता है? Something that is illegal, something that is not within the code of conduct. So credibility of politicians, not really. People's movements, okay, again a consequence. Free and fair elections or holding of powers. Definitely free and fair elections, which is a central feature of democracy. क्योंकि ये पैसेज आपके डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो आप सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढेंगे. इट इज़ अ सेंट्रल फीचर. अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो तो आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कभी भी सही नहीं होंगे, राइट? नो बडी विल हैव देयर फेथ बिकॉज द इलेक्शंस हैव बीन नॉन ट्रांसपेरेंट. सो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो रिड्यूस हो जाएगी. बट अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है तो आपको ये पता रहेगा दैट दिस इज द विल ऑफ द पीपल. द रूलर दैट इज एट द टॉप इज द विल ऑफ द पीपल. So that will make the government legitimate for you. You will find legality in that action of yours. So इसीलिए free and fair elections will be the correct answer. Moving to the last question from this passage, decisions in a democracy are more acceptable to the people because they are taken swiftly and implemented quickly. No. Taken by giving privileges to the people? Not at all. Taken through elite votes? No. टेकन आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेसेस, येस. अगर मैं आपको एक डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाऊं कि खुद के बीच में यू हैव टू चूज अ पर्सन हु विल बी द लीडर फॉर योर क्रिकेट टीम और हु विल बी द कैप्टन फॉर योर क्रिकेट टीम, वो डिसीजन कब आपको एक्सेप्टेबल होगी? जब वो किसी प्रोसेस के दौरान ली गई हो, ना कि वो क्विक हो, ना कि कुछ लोगों को वोट करने को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, या फिर मैंने कुछ लोगों को प्रिविलेजेस दे दी और उनके वोटिंग को ज़्यादा काउंट दिया. सो इन दैट वे वो डिसीजन आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो अनफेयर होगा. बट अगर आपने ड्यू प्रोसेसेस के बाद कोई डिसीजन लिया है देन इट विल बी मोर एक्सेप्टेबल. हेंस ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. Next, your passage is about Ford Motors. It talks about an American company which is one of the world's largest automobile manufacturers. Production इनकी 26 countries में spread हुई है. Ford Motors कब आई इंडिया में? 1995. Spent rupees 1700 crore and set up a large plant near what? Near Chennai, which is in South India. किसके साथ किया? कोलैबोरेशन में किया महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है. क्या चीज़ की मैन्युफैक्चरर है? जीप्स एंड ट्रक्स की. यहाँ पे फोर्ड मोटर्स की बात हो रही है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में आ रही है, प्रोडक्शन स्प्रेड है अक्रॉस द ग्लोब. यहाँ पे आकर के एक कोलैबोरेशन विच इज़ अ जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ अ थिंग, उनके साथ एक मेजर वेंचर स्टार्ट किया है. बाय द ईयर 2004 क्या होता है? फोर्ड मोटर्स इज सेलिंग 27,000 cars in the Indian markets, while 24,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico and Brazil.
company wanted to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो अब फोर्ड मोटर्स क्या चाह रही है कि एक फोर्ड इंडिया वाला ब्रांच बनाए जहां से ये लोग कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगी फॉर अदर कंपनीज दैट आर देयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसके बेसिस पे आपको ये फॉलोइंग एमसीक्यूज आंसर करने हैं. The passage given above relates to which of the following options? Increased employment. ये तो बस एक रिजल्ट है ना, एम्प्लॉयमेंट की तो बात भी नहीं की है, ये तो एसेंस नहीं है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा. फॉरेन कोलैबोरेशन ठीक है, चलो बोला तो गया है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला गया है. एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, not international competition. So does it relate to a foreign collaboration or a foreign investment? So you can answer option C as the correct answer here क्योंकि directly mention किया गया है. Moving to 26.2, according to the given passage, Ford Motors can be termed as a multinational company. तो हम लोग Ford Motors को एक MNC कह रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं? Is it because production of different types of automobiles? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है. लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, यस ये एक फैक्ट है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, बट आर वी कॉलिंग इट अ मल्टीनेशनल कंपनी बिकॉज ऑफ दैट? तो लेट्स सी दी अदर ऑप्शंस. बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स अक्रॉस द ग्लोब, नो. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वेंचर्स अक्रॉस द ग्लोब, सो येस डेफिनेटली इसके वजह से आप कह सकते हो, क्योंकि एमएनसी कब होती है? जब वो ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठाए. और ग्लोबलाइजेशन कब होता है? जब आपके प्रोडक्शन, आपकी सेलिंग, आपने एक वर्ल्ड को एक छोटा स्पेस बना दिया है, आप अपने कंपोनेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब में असेंबल कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो एंड देन मार्केट कर रहे हो. सो 26.2 डी विल बी द करेक्ट आंसर. By setting up their production plants in India, Ford Motors क्या करना चाहता था? Collaborate with a leading Indian automobile company, satisfy the demands of American, African and Indian markets, tap the benefits of low-cost production in a large market, no. Take over small automobile manufacturing units, ऐसा कुछ बताया नहीं. Collaborate with a leading Indian automobile company. Collaborate नहीं, it wanted to satisfy the demands of American, African and Indian markets, right? By setting up their production plants in India, Ford Motors क्या करना चाहता था? It wanted to satisfy the demands of other things across the globe and also collaborate with a leading Indian automobile company. So ये भी आंसर हो सकता है. It can be closely this, but I'll still go with B. Shall we go with B or not? Tell me. Let's see it again. It is one of the law. It came to India in this to set up a large plant. Collaboration with Mahindra and Mahindra. Ford Motors was selling 27,000 cars. इसमें से कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही थी. Company wanted to develop this as a component supplying base for it other plants across the globe. अदर पार्ट्स अक्रॉस द ग्लोब के लिए इन लोग करना चाह रही थी. बट यहाँ पे अमेरिकन, अफ्रीकन एंड इंडियन मार्केट्स, येस यू कैन यूज दिस. Coming to 26.4, Ford Motors wish to develop Ford India as a component supplying base for the other plants across the globe is an evidence of promoting local industries, no. Merging trade from different countries, yes. Supplying jobs to factory workers in India, no. Interlinking of production across countries. So it is interlinking of production across countries. क्योंकि कहीं पे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कहीं पे आप असेंबल कर रहे हो, so you are automatically increasing your operations towards the other parts of the world. So this is an example of globalization. With that we come to the end of the lesson. Thank you so much for staying connected. I hope आपको समझ आ गया हो सेक्शन डी को कैसे डील करना है. सेक्शन सी को डी एंड ई हम लोग डिस्कस करेंगे. ई इज जस्ट अ मैप बेस्ड क्वेश्चन एंड डी क्वेश्चंस आर ऑफ 5 मार्क्स ईच. तो वो भी मैं आपको ला दूंगी वीडियो and then you will be well aware of SST paper. I hope these videos are helping you. If they are helping you, please help us and motivate us by hitting on the like button. And if you have any queries, reach out to us in the comment section. You can also follow our channel on various platforms such as Facebook, Instagram, Twitter. And if you are watching this lesson on YouTube, please hit the bell icon and also subscribe to our channel. Looking forward to meet you with the next set of lessons. Till then, take care. Bye-bye. And see you soon.